afternoon, everyone. Welcome to this 89th session of eNISHIT, the National Initiative to Strengthen Collaboration between HIV/TB through e-learning. So while we have the attendance poll on screen, I will take this opportunity to introduce our expert for the day, Dr. Alpana Raizada. She is professor in medicine at the GTB Hospital, UCMS and GTB Hospital. It is one of the major teaching hospitals of Delhi. Welcome, ma'am, to the show. I would also like to welcome Dr. Dharampal from NRI-AP. He's a senior medical officer of the ART Center in NRI-AP, and his team is there. Welcome, sir, and your team to the show. And with this, I would like to introduce my team. On my left, I have Anuradha from Share India, who is a medical doctor and the technical coordinator for this team. So, and I am Dr. Upasna. I look after the ART Center at the National Institute of TB and Respiratory Diseases. So, welcome to the session today. आज का सेशन जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो डॉक्टर धर्मपाल लेके आए हैं. इसमें एक PLHIV था, आप पोल एंड कर दीजिए. एक PLHIV थे जिनको डिसेमिनेटेड लिम्फेडेनोपैथी थी. सारे में उनके लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग थी, मल्टीपल जगह लिम्फ नोड स्वेलिंग थी. और ये केस में बहुत ज्यादा वर्कअप की आवश्यकता थी ये पता करने के लिए कि ये क्या है, मतलब टीबी है, लिम्फोमा है, कोई और कुछ तो नहीं है. तो ये एक बहुत ही अच्छा वर्कअप केस है जो डॉक्टर धर्मपाल हमारे लिए आज प्रेजेंट कर रहे हैं. और इस पे एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट टॉक देने के लिए हमारे पास डॉक्टर अल्पना रायजादा हैं जीटीबी हॉस्पिटल से. सो इन वर्ड्स के साथ आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर धर्मपाल टू प्लीज share his, I think we are sharing screen. So let's share the screen for the case presentation, and can I request Dr. Dharampal to make the case presentation? Name of the good afternoon to everybody attending here. Madam, Fasna Madam, and Anuradha Madam, and Zita Madam, and all other people who are attending for this session. I am once again thankful for everybody. Before that, I want to tell my nodal officer was an examiner now at Chennai. He also conveyed his thanks to Upasana Agarwal Madam, particularly because he is unable to attend for this session. Anyhow, I am going to start this one. Name of the ART Center is NRI ART Center, Guntur, Andhra. ART Center contact number and my name was given there. Date of case submission is 16/11/2021. ART number is 1989. Age 37 of the patient. Gender male. Weight 45 kg. The patient had enlargement of cervical, axial, inguinal lymph node suggesting of PT bar lymphoma. He is a reactive for HIV-1 and kept on TLD. Later diagnosed as PT case for lymphoma. This is only a provisional diagnosis by the All India Institute of Medical Sciences here. Date of ART registration. Date of ART registration is 2/11/2021. Date of ART registration is 11/11/2021. Date of TB confirmation is 28/10/2021. Date of ART registration is 1/11/2021. Type of TB detected is pulmonary, extrapulmonary, both are. But here we diagnosed it as it is pulmonary TB because previously WHO classification and issue of the pediatrician at HIV at Bombay, they told lymph node enlargement you have to put the third one, otherwise other than maybe initiated or infected, then only we can put it extrapulmonary TB. Otherwise we have to put it pulmonary TB. Thinking that rule, we are putting it as a pulmonary TB, even though the lymph nodes are enlarged. But Upasana Madam yesterday, last time she told, if the IA levels of the infection is there, you can put it just a pulmonary TB. So let us have some clarification about that. The date of IPT completion, IPT not done because the patient has come only one day before. And other detailed example, a 37-year-old male was presented to the ART Center with complex cough, fever, breathlessness, weight loss associated with the loss of appetite, night sweats, easy irritability, and breathlessness on exertion from 1 month. He had the personal habits of consuming a lot of bouts of alcohol and smoking. Last 20 years, physical examination, both sides cervical lymph nodes are enlarged, matted, and non-tender. Oropharyngeal region normal, and tonsils are not enlarged, and both sides inguinal regional lymph nodes are enlarged. Hepatosplenic magali is also present, and his ENT is normal. And we have examined also his ophthalmology. Ophthalmology also normal. Nothing abnormal was found. FNOC of the left lymph node was done. Cytology for Jaden stain, including CB0, was done.
Finally, after the investigations, CT scan, MRI, and capture of the chest confirms the PTB, pulmonary TB. TB can also be similar complaints and same symptoms masquerading as lymphoma. After investigation, he was positive, suggesting of PTB, 4 FDC, 3 pills per day as per the weight for 45 kgs. He was initiated on ART since 11/11/2001 on TLD as per the CCT chest and abdomen. Hepatosplenomegaly, multiple enlarged cervical, mediastinal, mesenteric, and retropharyngeal lymph nodes with central necrosis. Here, this is central necrosis. Investigations for above case is given below. Detailed report submitted, scanning, biopsy, etc. CD4 count at the time of the ART initiation is 498 to that 12/11/2021. And viral load, if available, are not done because they started early only. 110/01. The serum creation mean is 0.9 milligrams, bilirubin 0.9, urea 23.54 milligrams, hemoglobin is 11.5 grams, rapid HB test non-reactive, rapid HBsAg test negative, APT is 15.4, INR 1.25, albumin 2.5, serum lactate is dehydrogenase, that is LT is 300 units for this one. And this is a little higher, but the normal range we have not given. It is only 125/220 here as per our lab standards. And the biopsy report on 28 and done. Smears MB is positive and CB not done. And the reformation resistance not detected. And biopsy reports size to smear studies show lymphoid series of cells mixed with a few epithelioid cells and strong fragments against hemorrhagic background. These are suggestive of granuloma, lymphadenitis. Ultrasound neck vessels, multiple lymph nodes are noted in the BL cervical region at levels of 16-234. The IMP BL cervical lymphadenopathy present. CT scan, neck, chest and abdomen, hepatosplenomegaly, multiple enlarged cervical, mediastinal, mesenteric and retroperitoneal lymph nodes with central necrosis. Diffuse small tree in the blood-nodular FSCTs and bilateral parenchyma. Possibilities include tubercular epilepsy, more likely lymphoma, less likely. Advised HPE correlation. Chest X-ray on 6/11/2001. Findings are suggestive of pulmonary tuberculosis and ART regime we started TLD and ATT regime 99 dots. And the CPT also we have started for the patient and other medicine T-bendon 40 milligrams and C-omega D 20 milligrams. Then our issue is here this patient 4 of this exception and in this patient. But unfortunately, after 2 months, the patient was not reported back because he went to his relative's house and died there with respiratory distress, they told. And because of alcohol, he is severe alcoholic. So, after consuming a lot of alcohol, some occasion, he died there. That's what the report given. His family wife also died because she 5 years back and committed suicide as per his her father-in-law's report. Because she came to know that she is HIV positive. Long history, that's the history. And has got 3 female children, 16, 12, and 8 years. This is a straight issue in this. This is sectionatum of the case. Our data which is actually 90 pages more, including all the investigations. My data manager edited because the time is very less. It is very difficult for madam to explain for all these things. She told like that to me and she edited all these things like cinema editor. So thank you very much, Dr. Dharampal. ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस था. केस को समराइज करते हुए एक 37-year-old का PLHIV है या there is a PLHIV जिसको एक्टिव एडिक्शंस की हिस्ट्री है और जो ART सेंटर आने से पहले उसकी कुछ डाउटफुल हिस्ट्री है कि उसने कहीं से TB का इलाज भी लिया और HIV का इलाज भी लिया है. वो क्या इलाज लिया है नहीं पता, पर जब वो हमारे ART सेंटर आया तो वो ART सेंटर आया था somewhere around the 1st of November 2021. पर उससे पहले उसको इनके हॉस्पिटल में ATT स्टार्ट हो गई थी 28 अक्टूबर 2021 को TB डायग्नोज हुआ था और 1/11/21 मतलब 2-3 दिन के बाद ही उसको ATT स्टार्ट हो गई थी और ATT स्टार्ट होने के 11-12 दिन के अंदर ही मतलब 11/11/2021 को उसको ART TLD स्टार्ट हो गई थी विद शायद एक्स्ट्रा रिटर्नोवीर भी दिया था इन्होंने इसमें. अच्छा, आप इसमें क्या था कि जिस वक्त इसका CD4 किया वो 498 था
अब ये जो 498 है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड पिक्चर है, क्योंकि अगर वो पीछे से कहीं से ART लेता हुआ आया था जिसके बारे में हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है, तो हो सकता है ये ऑन ट्रीटमेंट हो, और हो सकता है उसने ट्रीटमेंट लिया हो, ना लिया हो, कितने टाइम लिया हो, छोड़ दिया हो, हम कुछ नहीं कह सकते। तो एज अ रिजल्ट ये CD4 भी अनरिलायबल है। जब वो इनके पास आया NRIAP में, उस वक्त उसको डिससेमिनेटेड लिम्फ नोड एनलार्ज थे, उसके दोनों तो सर्वाइकल एनलार्ज थे, उसके एक्सियल लिम्फ नोड एनलार्ज थे, उसके इंग्वाइनल एनलार्ज थे। और जब इन्होंने CT स्कैन किया तो पता चला उसके एब्डोमेन में भी एनलार्ज है, रेट्रोपेरिटोनियल भी एनलार्ज है, मेसेंट्रिक भी एनलार्ज है। और CT चेस्ट में पता चला कि मीडियास्टिनल इंट्राथोरेसिक भी एनलार्ज है। तो मीडियास्टिनल, मेसेंट्रिक, रेट्रोपेरिटोनियल, बाइलेटरल, सर्वाइकल, इंग्वाइनल, एक्सिलरी, एंड द वंस इन द एक्सिला वर आल्सो मैटेड, वो मैटेड थे, साथ में चिपके हुए थे एक दूसरे से। सो इतनी एक्सटेंसिव इसको लिम्फेडेनोपैथी थी। लिम्फेडेनोपैथी के साथ साथ इनको लंग में भी लीजन निकला, और इनका जो सर्वाइकल लिम्फ नोड था इसको FNA किया गया, फाइन नीडल एस्पिरेशन किया गया, उसका CBNAT भेजा गया, और वो CBNAT में MTV पॉजिटिव आया। तो हमारे पास एक TB का डायग्नोसिस आया हमारे सर्वाइकल लिम्फ नोड से, और वो आर सेंसिटिव था जो CBNAT में इनका रिपोर्ट आया। पर एक इशू जो रह गया था वो ये था कि दो एवरीबडी फेल्ट कि इट इज अ TB लीजन, क्योंकि सेंट्रल नेक्रोसिस भी दिख रहा था, बट वी नो कि लिम्फोमा एंड TB कैन कोएग्जिस्ट। इट इज मेनी टाइम्स कि हमने देखा है एक लिम्फोमा का डायग्नोसिस हो जाता है और TB मिस आउट हो जाती है, या TB का डायग्नोसिस हो जाता है, लिम्फोमा मिस आउट हो जाती है। ये नहीं है कि वो गलत डायग्नोसिस था, बट दे आर एक्चुअली टू डायग्नोसिस कोएग्जिस्टिंग। So in any case, every time they went for a radiology, they were asked to get a histopathological examination done या biopsy. तो उन्होंने बायोप्सी कराई, जो कि सजेस्टिव ऑफ TB थी, और पेशेंट को ATT पे ही रखा गया, ATT पे ही ट्रीट किया गया और ART दिया गया। अब इनके इसमें कुछ इश्यूज हैं जो कि ये डिस्कस करना चाहते हैं, और जिसके लिए हमारी इनवाइटेड एक्सपर्ट फॉर द डे है डॉक्टर अल्पना रायजादा। Thank you, Pastor Ma'am, for the kind introduction. Shall I share my screen? So thank you very much, Dr. Dharampal, for आपने इतना अच्छा केस, एक वर्कडअप केस यहाँ लाकर सामने रखा सभी के। HIV विद जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, यानी कि HIV जिसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स बढ़े हुए हों, ये एक बहुत कॉमन सिनारियो होता है, क्योंकि जितने भी HIV के पेशेंट्स हैं वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम किसी न किसी एक वजह से, चाहे वो HIV पर से उसकी वजह से हो, चाहे HIV से संबंधित बीमारियों की वजह से हो, या फिर HIV से असंबंधित बीमारियों की वजह से भी हो, कभी ना कभी हमारे तक लिम्फ नोड्स या लिम्फ नोड्स की सूजन को लेकर आते हैं। HIV के साथ में लिम्फ नोड्स का होना तकरीबन ऐसा है जैसे कि शुरुआत से लेके एंड तक, जब तक कि एडवांस्ड HIV का स्टेज नहीं आ जाता या एड्स का स्टेज नहीं आ जाता, तब तक भी आपको कभी ना कभी ये पेशेंट सीरो कन्वर्जन से लेके एडवांस्ड HIV की स्टेज तक लिम्फेडेनोपैथी के पेशेंट्स को देखते रहना होगा। जैसा कि केस को ऑलरेडी समराइज करा जा चुका है, सो जो केस था हमारा वो एक 37 साल के वयस्क थे जो बेरली 45 किलो वजन के थे, और वो शायद कहीं से पहले से ले रहे थे ATT और ART, जिसके बारे में ठीक से हमारे पास सूचना नहीं है। बट वो जब इनके सेंटर पर प्रेजेंट करा तो वो अक्टूबर 21 में थे, और बहुत ही प्रॉम्प्टली उनकी डायग्नोसिस बनाकर 1 नवंबर 21 से उनका ATT इनिशिएट कर दिया गया। साथ ही साथ उनको रजिस्टर भी कर लिया गया ART सेंटर पर, और बहुत ही जल्दी विद इन 9 days ऑफ रजिस्ट्रेशन सारा वर्कअप करके उनको ART भी इनिशिएट कर दी बाय 11th। जब वो आए थे तो कॉफ, सांस के फूलने से, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, सो खांसी, डिस्निया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में क्या था? वजन का कमी, भूख का ना लगना और बुखार, इस तरह के सिम्टम्स लेकर आए थे। एग्जामिनेशन पर अलग अलग ग्रुप के लिम्फ नोड्स देखे गए, कुछ क्लिनिकली देखे गए, कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस पर पाए गए। तो जो इनके गर्दन के लिम्फ नोड्स थे, इंग्वाइनल रीजन के लिम्फ नोड्स थे, ये बढ़े हुए थे, मैटेड थे, जुड़े हुए थे एक दूसरे से, और टेंडर नहीं थे। साथ में लिवर और स्प्लीन दोनों ही बढ़े हुए थे। इन्होंने एक छाती का एक्सरे भी कराया, जैसा कि हर एक HIV के पेशेंट में कराया ही जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर, और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि पेशेंट में शायद TB हो या ना हो। तो जो चेस्ट एक्सरे था वो भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से कंसिस्टेंट था।
गर्दन का अल्ट्रासाउंड भी कराकर देखा, जिसमें बायलेटरल दोनों तरफ के सर्वाइकल ग्रुप जो थे लिम्फ नोड्स के वो बढ़े हुए थे और साथ में उनमें नेक्रोसिस भी दिख रहा था। तो अल्ट्रासाउंड भी एक बहुत अच्छा यूजफुल टूल होता है जो एक्सरे को भी सप्लीमेंट करता है इन केस ऑफ लिम्फेडिनोपैथी। सीटी स्कैन भी करा इन्होंने, जिसमें कि लिवर स्प्लीन दोबारा से पता चला बढ़े हुए हैं और बहुत सारे दूसरे लिम्फ नोड्स जो अन्यथा नहीं दिखते हैं, ना अल्ट्रासाउंड से ना चेस्ट एक्सरे से आराम से नहीं दिखते हैं, वो भी पाए गए और उनमें भी सेंट्रल नेक्रोसिस थी जो कि काफी ज्यादा इस तरफ शक को ले जाती है कि टीबी ही होगा मरीज में। सेंट्रल नेक्रोसिस का होना इज एन इंडिकेटर कि ये पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का हो सकता है। साथ में जो ट्रीन बड ओपेसिटीज थी, यानी कि ना सिर्फ उसमें गांठें थी छाती के अंदर, लेकिन साथ में लंग्स में का जो पैरेन्काइमा है उसमें भी ये इन्फेक्शन था, यानी कि लिम्फेडिनोपैथी एक्स्ट्रा पल्मनरी के साथ साथ इसमें पल्मनरी इन्वॉल्वमेंट भी था। इन्होंने टिश्यू डायग्नोसिस भी की, जिसमें एफएनए किया, नीडल से एस्पिरेट करा और उसके स्मीयर में इनको मिला ग्रेनुलोमैटस लिम्फेडिनाइटिस। साथ में इन्होंने स्मीयर का और स्पूटम का सीबी नैट भी करा, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस के लिए पॉजिटिव आया। और आपको पता ही है सीबी नैट का एडवांटेज ये भी होता है कि साथ में हमें रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंट है या नहीं है ये भी पता चल जाता है। सो ऑल एंड ऑल अ वेरी वेल वर्कड अप केस, जिसको आगे ले जाकर इन्होंने डिस्पाइट दिस स्ट्रॉन्ग सस्पिशन एंड सो मेनी इंडिकेटर्स कि ये टीबी ही है, दे वर स्टिल वेरी मच अप टू मार्क। और इन्होंने एक बायोप्सी भी कराई इस पेशेंट की, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि टीबी के साथ साथ कोई और चीज नहीं कोएग्जिस्ट कर सकती। तो अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के साथ एक यंग इंडिविजुअल आता है, HIV ना भी है तो भी लिम्फोमा को रूल आउट करना या मैलिग्नेंसीज को रूल आउट करना या दूसरे कॉजेस को भी रूल आउट करना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और HIV के मरीज में तो और भी ज्यादा जरूरी है कि हम मैलिग्नेंसीज को और दूसरे ट्रीटेबल कॉजेस को रूल आउट कर लें। और टीबी इतना वाइड स्प्रेड है हमारे कम्युनिटी में कि टीबी के साथ साथ किसी और चीज का होना इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती। सो दे वर very promptly they got a biopsy also done, जिसमें it was consistent with tuberculosis and या ये बोला जाए ग्रेनुलोमैटस लिम्फेडिनाइटिस मिला उसके बैकग्राउंड में, और साथ में उन्हें नहीं मिला कोई और ऐसा सेल जो कि मैलिग्नेंसी को डिफाइन करता, या जो लिम्फोमा में या दूसरे मैलिग्नेंसीज में हमें स्पेसिफिक साइटोलॉजी मिलती है वैसा उन्हें कुछ नहीं मिला। तो इनके पॉइंट्स 3 थे कि क्या 99 डॉट्स जो हम देते हैं 4 FDC जो हम फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन देते हैं वजन के हिसाब से देते, क्या वो इस मरीज के लिए काफी था या हमें इसके बियॉन्ड भी कुछ और देना चाहिए था, मतलब कोई और ATT तो नहीं देनी चाहिए थी। साथ में इसके अलावा ATT और ART के अलावा भी क्या ये कुछ और कर सकते थे बियॉन्ड व्हाट दे हैव डन। और तीसरा था कि क्या इन्होंने इतना करने के बाद हैव दे रूल्ड आउट अ डायग्नोसिस ऑफ लिम्फोमा, वर दे एबल टू, और कितना लिम्फोमा को हमें कितना सस्पेक्ट करना चाहिए इस तरह के केसेस जब भी हमारे सामने आते हैं। तो जो पहला इनका सवाल है कि क्या 99 डॉट्स 4 FDC इनफ है इस पेशेंट के लिए। यस, पेशेंट चाहे HIV का हो या HIV का नहीं हो, सिर्फ अगर ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनोपैथी के साथ में प्रेजेंट कर रहा है, जो आपके सीबी नैट टेस्ट के द्वारा भी देख लिया आपने कि रिफैम्पिसिन से उसमें रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो गाइडलाइन यही है कि हाँ वजन के हिसाब से जो आप देते हैं फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन, उसमें आप पहले ही देख लेते हैं कि लिवर में और गुर्दे में के टेस्ट में कोई परेशानी तो नहीं है। अगर वैसा है तो हम उसको मॉडिफाई करके देते हैं मेडिसिन को, वो एक अलग बात होगी। बट अगर जैसे कि इस पेशेंट में ना गुर्दे की टेस्ट में कोई कमी थी, किडनी फंक्शन वाज नॉर्मल, और ना ही लिवर फंक्शन टेस्ट, डिस्पाइट कि वो एक अल्कोहलिक थे, उनका किडनी और लिवर फंक्शन टेस्ट दोनों ही नॉर्मल थे। सो ये ठीक था कि इनको ये 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन जो 4 FDC है और वजन के हिसाब से इनको 3 गोलियां शुरुआत में दी गई और वो ठीक था। साथ में एक और गाइडलाइन भी है, शायद इन्होंने भी FNA का स्मीयर भी जीन एक्सपर्ट के लिए भेजा। सो दिस इज ऑल्सो अ गाइडलाइन कि इट हैज बीन फाउंड कि दिस इज अ वेरी यूजफुल एडिशनल टेस्ट। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ बलगम का ही जांच की जाए, सीबी नैट कराया जाए। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जो भी स्मीयर निकालते हैं, जो भी टिश्यू है, उसको भी सब्जेक्ट कर सकते हैं फॉर जीन एक्सपर्ट एनालिसिस। तो 6 महीने का जो हमारा स्टैंडर्ड ATT का फर्स्ट लाइन रेजिमेंट है, जो हम बाकी किसी भी उसमें देते हैं फर्स्ट लाइन में, वही हम एक पेरिफेरल लिम्फेडिनोपैथी के केस में भी दे सकते हैं। सो दे वर ओके विथ गिविंग दिस काइंड ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट। एंड आगे फॉलो अप नहीं हो पाया मरीज का, आगे नहीं पता उसका
लिवर फंक्शन तो नहीं बिगड़ गया, क्या हुआ, क्योंकि दोबारा फॉलोअप में मरीज नहीं आया और कुछ ऐसा है कि शायद 2 या 3 महीने के अंदर ही उनकी डेथ हो गई, तो इसीलिए नहीं पता व्हाट देयर आफ्टर क्या हुआ। बट यस, एज ऑफ जब उनको शुरू करना था दे वर ओके विथ व्हाटएवर दे गिव। अब कितना देना है ये भी एक सवाल आता है, हमेशा आता है। आप नॉर्मल जनरल मेडिसिन की ओपीडी में भी बैठे हैं तो लिम्फ नोड्स को लेकर, चूंकि वो जब तक घुल नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते, तब तक मरीज को ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं हुआ। तो क्या ये बढ़ाकर देना चाहिए? अगर ये इनका साइज कम नहीं होता है, उतने ही रहते हैं, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं साइज में, तो इसके क्या मायने होते हैं? दिस इज अनदर क्वेश्चन जो एग्जैक्टली इन्होंने पुटअप नहीं करा, बट इनवेरिएबली 3 महीने के बियॉन्ड हम कहते हैं कि हाँ आप तभी बढ़ाइए इसको। आपने 6 से लेके 9 महीने तक तो फिर भी एक बार अपने लेवल पर कर लिया, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है इसके बियॉन्ड भी जरूरत पड़ रही है तो यह सिर्फ किसी एक्सपर्ट की कंसल्टेशन में ही करें। सो अगर लिम्फेडेनोपैथी के बारे में आते हैं तो आई शो यू इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स कि हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे लिम्फ नोड्स, हमें ऐसा लग रहा है, आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एटीटी, तब क्या करना है। रिस्पॉन्स टू थेरेपी इज अ बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा मेजर इशू होता है, और टीबी लिम्फ नोड्स ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से ठीक नहीं होते। ठीक नहीं होते का मतलब साइज में कम नहीं होते आराम से। पैराडॉक्सिकल रिएक्शन एचआईवी के साथ में और नॉन एचआईवी पेशेंट्स में भी हो जाता है। एटीटी से भी कभी कभी ऐसा होता है कि साइज बढ़ जाता है गांठों का, या फिर कुछ नई गांठें भी आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं 20% लोगों में, या तो आपके टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान या टीबी का ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी। तो ये तकरीबन होता है 3 हफ्ते से लेकर 4 महीने के बीच में, जब हम ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं उसके ठीक बाद। कल्चर अगर आप कराएंगे इस समय में, आप इसका एस्पिरेट लेंगे, कल्चर के लिए भेजेंगे, तो वो यूजुअली नेगेटिव होते हैं। और इन रिएक्शंस का एक कल्चर नेगेटिव रिएक्शन अगर मिलता है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये है कि ये ट्रीटमेंट फेलियर नहीं है, रिस्पॉन्स टू थेरेपी आ रहा है। ये सिर्फ एक एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से कई बार साइज बढ़ जाता है, हालांकि इन्फेक्टिविटी कम हो रही होती है। कभी कभी लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, कहीं फ्लक्चुएशन आने लगता है, उनमें फ्लक्चुएंट हो जाते हैं, कभी उनके ऊपर लालामी आ जाती है, एरिथमा आ जाता है, कभी कभी उनमें से ड्रेन भी होने लगता है, डिस्चार्ज भी आने लगता है। तो ये सब भी पॉसिबल है। दीज कैन बी पैराडॉक्सिकल रिएक्शंस इन सर्टेन केसेस। अगर आपका कल्चर नेगेटिव नहीं हुआ है या पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनली भी इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो ट्रीटमेंट फेलियर या ड्रग रेजिस्टेंस आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, या फिर हो सकता है आपका मरीज उस तरह से टीबी की दवाई नहीं खा रहा जैसा कि आप सोच रहे हैं। चेस्ट में भी कई बार होता है कि वैसे तो ट्रीटमेंट चालू हो गया, आए थे सिर्फ लिम्फ नोड्स, छोटे छोटे लिम्फ नोड्स दिख रहे थे, और उसके बाद एटेलेक्टेसिस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और पेशेंट की ब्रेथलेसनेस टेम्पररी आपको ऐसा लगे बढ़ गई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स तो क्लिनिकली आप अपना मरीज देखना मत छोड़िए। डू नॉट जस्ट कीप ऑन रिलाइंग ऑन इन्वेस्टिगेशंस। अगर क्लिनिकली आपका मरीज इंप्रूव हो रहा है, उसका वेट इंप्रूव हो रहा है, उसकी एपेटाइट इंप्रूव हो रही है, उसका फीवर आना बंद हो गया है, उसका जनरल वेलबींग इंप्रूव हो गया है, these are also very significant markers की रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसलिए मरीज को हाथ लगाना, मरीज को देखना, ये चीजें छोड़ी नहीं जा सकती, नो मैटर कितने भी इन्वेस्टिगेशंस आपको अवेलेबल कर दिए जाएं। एचआईवी में जैसे इस पेशेंट में था, शायद ये मरीज पहले से ले रहा था एआरटी और एटीटी, नहीं पता, बट इसके CD4 बहुत अच्छे थे। 498 का CD4 लेकर आना मतलब क्लोज टू वेरी गुड CD4, जो हम उसके साथ में डिसेमिनेटेड टीबी का होना थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है, बट यस, टीबी किसी भी CD4 पर आपको देखने को मिल सकती है। हम वी आर एन एंडेमिक कंट्री फॉर इट। तो एचआईवी के पैराडॉक्सिकल रिएक्शन, जिसको हम आइरिस कहते हैं, इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, दीज आर वेरी कॉमन एंड दे आर मोर एसोसिएटेड विद इनिशिएशन ऑफ एआरटी देन विद एटीटी। तो एआरटी के चालू होने के बाद ये ज्यादा कॉमन होते हैं। इम्यून रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आपके जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, बिल्डअप होता है, तो जो रिएक्शंस होते हैं, इम्यून रिएक्शंस होते हैं, वो बढ़कर दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हमेशा ध्यान में रखना है वो है ट्रीटमेंट फेलियर। चाहे आपका मरीज नहीं खा रहा है दवाई, उसकी वजह से हो रहा हो, या उसको रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, कोई इन्फेक्शन ना हो गया उसके अलावा, या फिर कोई और ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस ना हो सकता है कि जिस डायग्नोसिस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वो डायग्नोसिस नहीं है। तो कोई कंसेंसस गाइडलाइन एज सच नहीं है, लेकिन हम यूजुअली CD4 को एक मार्कर की तरह मानते हैं। अगर CD4 इंप्रूव हो रहा है और उसके बाद भी पेशेंट आपका क्लिनिकली वर्सन
दिख रहा है तो आईरिस की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली इस केस में एक सेकेंड CD4 की रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अब आप कैसे इस पैराडॉक्सिकल रिएक्शंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है, सीक्वेंशियली अपने मरीज को एस्पिरेट करके देखने की जरूरत पड़ती है, वो कर सकते हैं। कभी कभी एक्सिजन भी कर देखना हो सकता है। एंड देन अगर ट्रायल ही देना है तो एनसेड्स या आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का ट्रायल आइरिस मैनेज करने के लिए दिया जाता है। कोशिश ये होती है कि ART बंद ना की जाए। FNA भी करा जा सकता है। उसमें FNA के सैंपल पर आप AFP और कल्चर दोनों को यूज कर सकते हैं, और इसका ये यूज होगा कि आप पैराडॉक्सिकल रिएक्शन है या ट्रीटमेंट फेलियर है इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने पेशेंट में। तो सबसे ज्यादा होता है TB एसोसिएटेड आईरिस, और हम 4 से लेकर 54% तक मरीजों में ये देखने को मिल सकता है। जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कहाँ हम ज्यादा सस्पेक्ट करते हैं कि ये आईरिस तो नहीं है, जिन लोगों के CD4 काउंट 100 से भी नीचे हैं। हमारे मरीज में तो काफी अच्छे CD4 काउंट्स थे। कुछ होते हैं जिनमें रैपिडली इनिशियल जो HIV वायरल लोड है, जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कई लॉग होता है, लैक्स में होता है, सडनली फॉल करके कुछ थाउजेंड्स में आकर पहुंच जाता है। तो जब इतना इनिशियल हाई वायरल लोड सडनली फॉल करता है, ऐसे मरीजों में भी आईरिस का चांस बढ़ जाता है। जैसे इस पेशेंट में था द सिवियरिटी ऑफ TB डिजीज, बहुत वी सस्पेक्ट कि ही वुड हैव अ हाई पैथोजन बर्डन, पल्मोनरी भी था, सारे लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे, चाहे इंट्राथोरेसिक हो, रेट्रोपेरिटोनल ग्रुप्स हो, सारे पेरिफेरल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व थे। एंड देयर वाज अ वेरी शॉर्ट इंटरवल, बहुत कम समय था दोनों ATT और ART के चालू होने के बीच का जो इंटरवल था वो काफी शॉर्ट था। साथ में मेल सेक्स एंड यंगर एज, दीज 3 क्राइटेरिया दे मीट, ये हमारे मरीज के लिए भी अप्लाई करे जाते हैं। So HIV RNA का हमारे पास we do not have a viral load, so we cannot comment on that. But yes, जितना ज्यादा वायरल लोड ज्यादा होगा उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि आईरिस हो सकता है। और थोड़ा बहुत कुछ अनुवांशिक जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी होती है, जिसको ऑब्वियसली हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो आप सभी का ये रहता है कि कैसे करना है, कब चालू करना है, जल्दी चालू करना। कभी प्रेशर होता है कि हाँ ATT और ART दोनों को ही जितना जल्दी हो सके चालू करना है। ATT ऑफ कोर्स इज अ प्रायोरिटी। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है ये मरीज लेता था या नहीं लेता था। अगर ऑलरेडी ले रहा होता है तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, ART को कंटिन्यू रखते हैं, बंद नहीं करते बीच में। अगर नहीं ले रहा होता है देन वी कैन वेट फॉर सम टाइम, वो CD4 के हिसाब से और बाकी मरीज की इन जनरल जो सिचुएशन है, क्लिनिकल सिचुएशन है, उसको देखते हुए हम इसको ART को इनिशिएट करते हैं। सो ऑप्टिमल टाइमिंग क्या है, सही वक्त क्या होता है? अगर CD4 सेल काउंट लेस देन 50 है आपके पेशेंट का, तो ART को हम कहते हैं जितना जल्द से जल्द हो सके आप चालू कर दीजिए। इसके लिए एक अपवाद है, अगर TB मेनिंजाइटिस है तो हम ART इतने जल्दी चालू नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम होता है, और सीरियस एडवर्स इवेंट्स देखने को मिलते हैं CNS में, जो यूजुअली लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर CD4 काउंट आपका 50 से ज्यादा है, जैसा इस मरीज में था, तो ART को तभी भी जल्दी से जल्द शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इसको मरीज की स्थिति को आंक कर, उसमें कितना ड्रग इंटरैक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, क्या वो दवाई खाएगा, TB की गोली खाएगा नहीं खाएगा, ART खाएगा नहीं खाएगा, वो प्रीडिस्पोज तो नहीं है। कुछ मरीजों में, जैसे ये पेशेंट अल्कोहलिक था, कई बार टॉक्सिसिटी, ATT इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस या अंडरलाइंग LFT में भी कुछ 19-20 अगर है फर्क, तो क्या इसको टॉक्सिसिटी ज्यादा हो सकती है? ये सब कुछ देखते हुए वी नॉर्मली थिंक कि हाँ अप टिल 8 वीक्स भी रुका जा सकता है। कोशिश रहती है जल्द से जल्द, लेकिन अगर आपको संशय है तो केस टू केस बेसिस पर प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद आप उसको डेफर कर सकते हैं। पहले इंश्योर कर सकते हैं कि वो TB की मेडिसिन आराम से हैंडल करने लगे, एंड देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर पेशेंट ऑन ART। इन्होंने पूछा और क्या किया जा सकता था, तो इन्होंने ऑलरेडी ATT, ART, CPT सब कुछ चालू करा हुआ था। पायराडॉक्सिन भी दे रखी थी। हमारे पास 40 मिलीग्राम की गोली आती है, हम 40 की दिया करते हैं। बाकी जो और दूसरे सपोर्टिंग ट्रीटमेंट वाज रिक्वायर्ड, मेडिकल मैनेजमेंट ग्रॉसली वाज फाइन, उसमें कुछ और नहीं था। उसको हैंडल हुए नहीं हुए ATT वी वर नॉट वेरी श्योर, बट यस इन्होंने PPI भी दे रखा है पेशेंट को। नॉर्मली हम PPI थोड़ा अवॉइड करते हैं, स्पेशली एटाजानावीर बेस्ड रेजिमेंट, बट यस यहाँ तो वो दिया नहीं था। एंड इट वाज इम्पोर्टेंट कि पेशेंट हैंडल कर ले ATT, क्योंकि ART भी जल्द से जल्द इसको चालू करना था। दूसरी जो चीजें हैं जो थोड़ी थोड़ी कभी कभी वी लैक इन, के केस टू केस बेसिस पे प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं कि किसको ज्यादा हमें काउंसिल करना है, किसको ज्यादा फॉलोअप की
स्ट्रिक्ट फॉलोअप की रिक्वायरमेंट है, कहाँ जाकर हमारे आउटरीच वर्कर्स बेहतर काम कर सकते हैं, कहाँ हम उसको एडमिट करके थोड़े दिन ऑब्जर्व करके भी दे सकते हैं, जहाँ एक एक्टिव केयर गिवर नहीं होता है, जैसे वाइफ नहीं थी इनकी और भी कोई सपोर्ट सिस्टम, सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं दिख रहा था, तो ऐसे पेशेंट्स में जहाँ डिसेमिनेटेड टीबी भी दिख रहा है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज करके थोड़े दिन अगर पॉसिबल होता है तो वो, अदरवाइज कोई एक एक्टिव केयर गिवर को ढूंढकर किसी एनजीओ से अटैच कर प्लस काउंसलिंग हैज अ बिग रोल। केयर गिवर होता है थोड़ा इजी हो जाता है कि केयर गिवर को भी काउंसिल कर देते हैं, दे हेल्प इन एक्चुअली मेंटेनिंग अडेयरेंस और एडवर्स इफेक्ट्स के ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर देते हैं केयर गिवर्स। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे सभी पेशेंट्स में ज्यादा समय लगाए, उसको अडेयरेंस के लिए काउंसलिंग करी जाए, एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं अगर उसको पहले से ही पता होगा, सो इज लेस लाइकली कि वो बीच में ट्रीटमेंट को छोड़ेगा। एंड फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी को 1 मंथ मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं इस ईज के लिए कि उनको बार बार ना आना पड़े, और कभी नहीं आ पाए अगर तो उनके बीच में गैप ना आए मेडिसिन को लेने में। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सम पेशेंट डेफिनेटली बाय डे 15 तो उसको एक बार टैप करना ही है टू फाइंड आउट कि उसका अडेयरेंस ठीक है कि नहीं, उसको कोई और प्रॉब्लम दवाइयों से हो रही है या नहीं हो रही है। सो अगर देखा जाए तो शायद इस केस में हम ये कर सकते थे कि हम पहला एक फॉलो अप हो जाने देते एंड बाय 15th day or second week we could have started off as ART also. अल्कोहल ले रहे थे, दैट इज अ बिग चैलेंज, बोलना आसान है करना मुश्किल। अल्कोहल एब्स्टिनेंस, क्लिनिकल मॉनिटरिंग, लैब मॉनिटरिंग, जब भी मरीज आता है प्लीज वजन लेना, पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करना और उससे बात करना उसके सिम्टम्स को लेके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैब टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट स्पेशली मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ATT चालू करते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पेशेंट बहुत माल नरिश था, BMI काफी कम रहा होगा इस मरीज का, कैसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट, प्रोटीन इंटेक, बाकी सब कुछ कैसे उसको एडवाइस करना, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत सारे सेंटर्स पे डायटिशियंस अवेलेबल होते हैं, उनसे भी एक काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए ऐसे मरीजों की। प्लस ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज तो होता ही है साइको सोशल सपोर्ट का, जहां और इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेशेंट बिकॉज ही वाज सिंगल, ही वाज प्रोबेबली अ डिफॉल्टर और वो अल्कोहलिक भी थे, और साथ में कुछ ना कुछ इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनेंशियल बेनिफिट जो हम सभी एक्सटेंड करते हैं एज मच एज इज पॉसिबल। बट इट बिकम्स मोर पर्टिनेंट जहां आप अपने पेशेंट का आपको दिख रहा है कि इसको रिटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लिम्फोमा, यहाँ इन्होंने अच्छे से रूल आउट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जब भी कोई एक यंग मरीज आपके पास इस तरह से आता है तो बहुत कॉमन है दोनों का एक सा प्रेजेंट करना। तो टीबी लिम्फोडेनोपैथी एंड लिम्फोमा लिम्फोडेनोपैथी कैन प्रेजेंट ऑलमोस्ट सिमिलरली, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स सेम होते हैं, लिम्फ नोड्स वही होते हैं, हिपाटोस्प्लीनोमेगाली मिल सकती है। तो क्लासिकली जो होते हैं हम कहते हैं कि हाँ टीबी के लिम्फ नोड्स मैटेड होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बहुत होते हैं, नंबर ज्यादा होता है, कभी कभी ड्रेनिंग साइनसेस मिलते हैं, हार्ड टू फ्लक्चुएंट होते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है वो रबरी भी हो जो हमारे क्लासिकली लिम्फोमा के लिम्फ नोड्स मिलते हैं, डिस्क्रीट फर्म एंड रबरी भी हो सकते हैं। तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमेशा आपको राइट दिशा में ले जाए। दोनों में ही सेम ही ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फ नोड्स के सेम सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, और FNAB में भी अनफॉर्चुनेटली ग्रेनुलोमैटस लिम्फोडेनाइटिस कैन मास्क अ लिम्फोमा आल्सो। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट कि हाँ बहुत सारे केसेस में जहां डाउट स्ट्रॉन्ग है वहां पर बायोप्सी तक जरूर पहुंचाना है केस के इन्वेस्टिगेशन को। व्हेन डू यू थिंक कि टीबी होना मतलब टीबी नहीं हो सकता है, उसके क्या पॉइंटर्स होते हैं? यूजुअली अगर एज थोड़ी ज्यादा, ये सारे पॉइंट्स देखिए HIV में नहीं सही बैठते हैं, क्योंकि ये दीज पेशेंट्स कैन प्रेजेंट वेरी अर्ली, ज्यादा उम्र होती है हम मैलिग्नेंसी ज्यादा सस्पेक्ट करते हैं, लेकिन HIV के पेशेंट्स में कम उम्र में भी मैलिग्नेंसी हो सकती है, उतनी ही ज्यादा बल्कि और भी ज्यादा। सुप्राक्लाविकुलर लिम्फोडेनोपैथी होती है अगर आइसोलेटेड हार्ड सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड है, तो ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ सभी प्रैक्टिकली एक्सपोज है टू केस ऑफ टीबी, सो यस बट यस अगर डेफिनेट हिस्ट्री मिल रही है कॉन्टैक्ट की तो हम टीबी की तरफ ज्यादा जाते हैं। कभी कभी होता है FNA कराते हैं कुछ नहीं मिला, एक और बार कराया तो भी कुछ नहीं मिला, सो FNA अगर इनकंक्लूसिव है तो भी, प्लस अगर TST जो कि HIV के पेशेंट में वैसे भी हमारा TST जो हम करते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं बचती है। सो अदरवाइज अगर हमको करना होता है एक नॉन HIV पेशेंट में तो शायद एक नॉर्मल TST would have been a pointer towards a non-TB etiology. सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मरीज अगर ठीक नहीं हो रहा है तो भी ये नहीं कहते रहना है कि नहीं तुमको यही खाना है सब कुछ ठीक है,
इट मीन्स दैट हमें एक और मौका देना है, दोबारा से इन्वेस्टिगेट फिर से करने की कोशिश करनी है पेशेंट को। अगर क्लिनिकली इंप्रूव नहीं हो रहा है पेशेंट और उसके लिम्फ नोड्स एटीटी के चालू होने के बाद दोनों ही कॉम्बिनेशन में है, नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, देन वी अगेन नीड टू रीइवैल्यूएट आवर पेशेंट। और एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट, गट इन्वॉल्व मिल रही है, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट भी मिल रहा है, देन ऑल्सो वी हैव टू सी, क्योंकि प्राइमरली टीबी हमें या तो पल्मनरी के साथ में मिलेगा कॉम्बिनेशन में, या फिर लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी। बहुत सारे कारण है एचआईवी पर से, परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, जिसमें और कोई कारण नहीं है, एचआईवी वायरस ही कारण है। और परसिस्टेंट इसलिए क्योंकि ये I'll come back to it, अच्छा विद अ स्लाइड के साथ में बताती हूँ आपको। बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शंस भी होते हैं एचआईवी के साथ में कॉमनली, टीबी तो है ही। अगर हमारा कंट्री इतना एंडेमिक नहीं है फॉर एनटीएम, बट जहाँ टीबी एंडेमिक नहीं है वहाँ नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया, स्पेशली अगर आपके पेशेंट का CD4 बहुत कम है ना, 100 से भी नीचे है, तो वी वुड सस्पेक्ट एन एनटीएम और मैक इन्फेक्शन भी सोच सकते हैं। फंगस इज ऑल्सो बहुत क्लोज मिमिक है, हिस्टोप्लाज्मा वगैरह आप देखेंगे, इट्स अ वेरी क्लोज मिमिक। वो लिम्फोमा और टीबी दोनों को ही बहुत ज्यादा मैच करता है उसका प्रेजेंटेशन। दूसरे और इन्फेक्शंस लाइक बार्टोनेला, टॉक्सो, सिफिलिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये सब हो सकते हैं। कॉमनर मैलिग्नेंसीज जो मिलती हैं उसमें हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस, और बहुत सारे ड्रग इंड्यूस, स्टोरेज, सार्कोइड, सो ऑल अदर रीजंस जो एक आम आदमी को अप्लाई करते हैं वो एक एचआईवी के पेशेंट पर भी अप्लाई होते हैं, बिकॉज फाइनली ही इज पार्ट ऑफ द सेम कोहॉर्ट। कारण है जहाँ लिम्फ नोड का साइज 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, दो से ज्यादा नॉन कॉन्टिगुअस एरियाज, नॉन कॉन्टिगुअस ग्रुप्स जो एक ही एरिया को ड्रेन नहीं कर रहे होते, दूर दूर के एरियाज को ड्रेन करते हैं वो, और जो लास्ट ये एक स्टेज 1 इलनेस है, और CD4 काउंट और ART पे डिपेंड भी करती है ये लिम्फ नोड्स की रीमॉडलिंग। मोस्ट कॉमनली PGL में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हेड एंड नेक रीजन का मिलता है, बट बिकॉज जनरलाइज्ड है अदर ग्रुप्स आर आल्सो इन्वॉल्व। सो आई विल नॉट गो इनटू NTM, बट यस NTM अगर पेशेंट आपका लग रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस प्रूव नहीं हुआ है पेशेंट में और आपका CD4 भी कम है, then NTM is also a cause which needs to be ruled out. एक और खास बात है कि टीबी लिम्फेडिनोपैथी तो सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन है ही एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी का, एंड एज यू नो एचआईवी के साथ में एक्स्ट्रा पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, नॉर्मल इंसान में इतनी नहीं मिलती है जिसमें एचआईवी नहीं है। सो पेरिफेरल लिम्फ नोड्स का जो मेजर रीजन है हमारे पास, वो रफली हाफ ऑफ द पेशेंट्स यू विल हैव कि टीबी ही उसका कारण होता है। सो एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी हम वैसे कहते हैं कि लेसर देन 300 के काउंट्स पर मिलता है, बट टीबी कैन हैपन अक्रॉस एनी CD4 काउंट, एंड यूजुअली लिम्फ नोड टीबी का होना अगर आपका ट्रीटमेंट पर भी है पेशेंट, तो भी उसको हम ट्रीटमेंट फेलियर की तरह नहीं मानते कि हमारा ART काम नहीं कर रहा है, बिकॉज इट इज सो प्रिवलेंट इन आवर सेटअप। सो एज आई सेड कि बहुत सारे कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस हैं, ये तो रीइटरेशन है, बट कुछ अनकॉमन प्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं कि कभी कभी एरिथमा नोडोसम एक लाल उभरे हुए चकत्ते की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, स्किन साइंस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, साइनस में से ड्रेनिंग साइनस की तरह प्रेजेंट कर सकता है, या कभी कभी लिम्फ नोड्स एब्सेस की तरह भी प्रेजेंट कर सकती हैं। तो ये कुछ अनकॉमन वेराइटीज हैं जो कि एचआईवी के पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। FNA एक्सेशनल बायोप्सी, ऑब्वियसली FNA प्राइमरी हमारा फर्स्ट मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, बट एक्सेशनल बायोप्सी एज वाज रिक्वायर्ड इन दिस केस उसकी सबसे अच्छी डायग्नोस्टिक यील्ड है। तो जब भी डाउट ज्यादा हो तो इट इज वेरी एसेंशियल दैट वी सब्जेक्ट आवर पेशेंट फॉर वन एक्सेशनल बायोप्सी, क्योंकि सोचने में लगता है कि हम एक बड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, बट दिस कैन बी वेरी लाइफ सेविंग फॉर द पेशेंट। तो उसको अप्रोप्रिएटली काउंसिल करके बायोप्सी के लिए रेडी कर सकते हैं। सो आजकल जीन एक्सपर्ट की अवेलेबिलिटी सभी सेंटर्स पर है, तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट को यूज कर सकते हैं। कल्चर ऑफ कोर्स इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, लेकिन टाइम टेकिंग है, बट एडवांटेज ये है कि ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग
करी जा सकती है और आपको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में ज्यादा मदद मिलती है अगर आपने पेशेंट का कल्चर भी लगा रखा है तो। चेस्ट इमेजिंग इसीलिए करना मैंडेटरी है, हम वैसे भी करते हैं, जहाँ टीबी नहीं भी सस्पेक्ट करते हैं वहां भी हर पेशेंट में करते हैं, बट इट इज वेरी कॉमन इन 90% ऑफ पेशेंट्स। आपके जो HIV के पेशेंट्स हैं उनमें अगर आपको लिम्फेडिनोपैथी मिल रही है तो 90% में आपको चेस्ट में भी मिलने की गुंजाइश है, इसलिए वी हैव टू बी वेरी श्योर कि पल्मनरी इन्वॉल्वमेंट को भी रूल आउट हम जरूर करें, एंड दैट विल हेल्प अस इन फर्दर मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। पेट CT कहते हैं बहुत ज्यादा आपका लिम्फोमा वर्सेस ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती है, क्योंकि जो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है टीबी के साथ में। तो अगर आप उसको यूज करने की कोशिश कर रहे हैं टू डिस्टिंग्विश टीबी लिम्फेडिनोपैथी फ्रॉम लिम्फोमा लिम्फेडिनोपैथी, तो दैट इज नॉट अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि उसके बजाय हम बायोप्सी पर फोकस करें। सो इन अ नटशेल आई वुड जस्ट से कि इतना कॉमन है HIV के साथ में टीबी का होना कि जो हम 4S सिम्टम स्क्रीनिंग करते हैं उसको बहुत रिलीजियसली करना है। और हम लोग कहते हैं हर लेवल पे आपका, जहाँ केयर कोऑर्डिनेटर से लेकर काउंसलर से लेकर डॉक्टर से लेकर स्टाफ नर्स से लेकर सभी इस चीज को एक एक बार 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 पूछें, तो ये स्क्रीनिंग बहुत इफेक्टिव है। तो 4 सिम्टम स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीबी लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है मरीज आपके पास ना आए लेकिन एक गुड थॉरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कई बार आप खुद पिक कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो बिकॉज इट्स सच अ कॉमन फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पल्मनरी टीबी दैट प्लीज टेक योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो सीरियसली। और ये भी ध्यान में रखिए कि टीबी इतना कॉमन है कि हमें ऐसा लगता है हर चीज ही टीबी की वजह से होती है, लेकिन बहुत सारे और भी दूसरी वजह हो सकती है। इसलिए गुड क्लिनिकल सस्पिशन, बार बार मरीज से इंटरैक्ट करिए, उसके रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम हो रहा है नहीं हो रहा है, and take appropriate aid of all the imaging and other lab services जो भी आपके आसपास अवेलेबल है। ATT को अर्ली इनिशिएट करिए और ART को ऑप्टिमली टाइम करिए। जो सही समय आपको लगता है, कंफ्यूजन है तो किसी से कंसल्टेशन लेने की कोशिश करिए। आपके नोडल ऑफिसर या कोई और आपके मेडिसिन के या पल्मनरी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन हेल्प यू आउट विद दिस। और आयरिस और पैराटॉक्सिकल आयरिस को बहुत ध्यान में रखना है। जो हम सोच सकते हैं हम कि हमने कुछ नया कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट वर्सन कर रहा है, ART को यूं ही बंद कर देते हैं, आयरिस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और डॉक्यूमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। एंड फाइनली अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट, मरीज को सिर्फ दवाई नहीं देनी है, उसको हर तरह का केयर एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है। This is all from my side, and I'll be happy enough to take questions if any. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for such a crystal clear presentation. So, so to continue with the talk, I think the talk was very clear. कोई सवाल पूछना चाहेगा मैडम से? इसमें कुछ समरी की एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ यही कहूंगी कि yes, our 4 FDC is sufficient. The 99 dots or whatever treatment is given under dots is sufficient for cases of lymph node tuberculosis also, even though it is disseminated. Yes, the program has a provision for extension of 3 months for inadequate responses or where we feel that there is a slow response, and any extension beyond the first 3 months, like the first 3 months can be done at your level, and any extension beyond the first 3 months needs to be consulted with a subject expert. Like if it's a spinal TB, you have to talk to an orthopedic surgeon. In this particular case, you might need an internal medicine physician or a TB specialist to allow for extension more than 3 months. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैडम ने बोली कि ये पेशेंट ऐसा था बिकॉज इसको एक्टिव अल्कोहल एडिक्शन थी, he didn't have a caregiver and he had a severe version of TB, so he was probably one of those cases जिसमें हमारे जो साथ की सर्विसेज हैं, जो अदर देन द डॉक्टर वाली सर्विसेज हैं, जैसे जो हमारा कम्युनिटी केयर है, जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो हमारे आउटरीच वर्कर्स हैं, रिपीटेड फॉलोअप है, इस सब का बहुत मेजर रूल था to salvage the patient. And when we see a patient like this, so we should look for enhanced follow-up and enhanced care package through our team, through the other members of our team other than the doctor, to help such patients. जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट हुई वो हुई थी पैराडॉक्सिकल आयरिस। पैराडॉक्सिकल आयरिस उस तरह का आयरिस होता है जो कि पहले ही कहीं बॉडी में टीबी होती है, ART के देने से या तो वही साइट वर्सन हो जाती है या नए लिम्फ नोड, नए प्लूरल एफ्यूजन, नए
इन्फिल्ट्रेट्स या कोई नया टीबी का साइट उजागर हो जाता है जो पहले नहीं दिख रहा होता, उसमें भी पेशेंट कभी कभी बहुत सिक हो जाता है दवाई खाने के बाद। बट यूजुअली ऐसे केसेस में अगर आप माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाओगे, कल्चर करवाओगे, तो पेशेंट जो है उसमें कल्चर नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट की प्राइमरी डिजीज एडवांस नहीं हुई है। बट हैविंग सेड दैट, रिमेंबर व्हेनेवर यू सी अ पेशेंट वर्सनिंग, आयरिस को सोचने से पहले आपको ये देख लो कि वो बंदा दवाई भी खा रहा है कि नहीं। जैसे इस पेशेंट में मे बी ही इज नॉट एडहेरेंट टू ड्रग्स। फॉर एग्जांपल, इन दिस पेशेंट, बिकॉज ऑफ हिज वेरियस अदर सोशल प्रॉब्लम्स एंड हिज एडिक्शन प्रॉब्लम, his worsening was most likely due to non-adherence. So this patient must have been non-adherent, which must have led to his ultimate demise, despite a correct workup and correct diagnosis by NRIAP. Such an extensive diagnosis was done, but still we lost the patient because of his other social problems. And the CD4 was also good. Still, I think the patient was just on the edge, and any amount of non-adherence actually pushed him to the other side, and we lost the patient. चौथी चीज जो मैडम ने बताई यहाँ पे, जो डीडी उन्होंने बताया, डीडी जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिसेमिनेटेड lymphadenopathy का, ऑब्वियसली टीबी विल बी द फर्स्ट, बिकॉज कॉमन थिंग्स फर्स्ट। जो सबसे कॉमन चीज है उसको सबसे पहले सोचना है। सेकंड वुड बी लिम्फोमा, थर्ड वुड बी मैक। मैक हम यूजुअली अगर कहीं पे सीबीनैट पॉजिटिव आ गया है तो हम मैक इसलिए नहीं सोचते क्योंकि एक बॉडी में दो टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, एमटीबी एंड मैक, यूजुअली नहीं एग्जिस्ट करता। बिकॉज जहां पे डोमिनेंट बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया होता है, वहां पे नॉन डोमिनेंट बैक्टीरिया नहीं हो पाता। एक तो सेम इंडिविजुअल में नहीं हो पाता, और दूसरी चीज इवन इन एपिडेमियोलॉजिकली ऑल्सो, wherever MTB is dominant, like in countries of Southeast Asia, usually MAC is not dominant. तो इसमें ऑलरेडी सीबीनैट पॉजिटिव था, तो शायद हम मैक इसमें नहीं सोचते, जो कि राइटली एनआरआईएपी ने किया है और जो मैडम रायजादा ने भी बताया है। दूसरा डायग्नोसिस हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। तो मैक के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, टॉक्सोप्लाज्मा के लिए, वी वुड एक्सपेक्ट अ वेरी लो CD4 काउंट, एंड बाय एंड लार्ज जो इस केस में दो डीडी बनी रह जाती है वो टीबी और लिम्फोमा है। इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर देयर। एक तो सेंट्रल नेक्रोसिस ऑन सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड्स। सेकंड जो उससे भी बेटर था वो था इनकी एक्सिजनल बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, which told them clearly that this was not lymphoma, and so they could go with their primary diagnosis of TB, which had already been made on the basis of a CBNAT report showing MTB positive R sensitive. So this would be the brief summary of this particular session. So any questions from Dr. Raizada or any questions from NRIAP, Dr. Dharampal? Dr. Dharampal, is it clear for you? Do you want to ask something more? Madam, latestly, I want one doubt. After COVID cases, we do 1-2 steps, they become positive, they are telling. Why? In COVID? After COVID, COVID treatment, last time for some of the patients suffered with COVID, and if they got any doubt and if they are doing these 1-2 steps, they are becoming positive. That's why they are not doing that one. Is correct. So this was one isolated case that you saw. So basically, what happens is MON2 can be positive during any stage of your life, and there can be different reasons for MON2 positivity. One would be that they have acquired a new infection. Okay. The other reason could be that they are having some other skin sensitivities, like a fungal sensitivity or some other sensitivity which causes MON2 positive. And usually after administration of steroids, as is seen in COVID, MON2 should not be positive. MON2 should actually be negative. But yes, if somebody's MON2 is positive, the most likely explanation would be that the patient has got a new TB infection, which the body is trying to fight. And that TB infection might be due to his immune compromised state due to steroid being given to him, and the steroids not affecting the skin changes. And in an isolated case here and there, actually there would be no other explanation than this. We could probably research it and get back to you. दो सवाल थे जो कि बहुत ही सरल हो गए डॉक्टर अल्पना के सेशन के बाद। वेरी नाइसली टेकन मैडम। तो फर्स्ट सवाल था हमारा कि एक PLHIV जिसमें एक EPTB है, उसको हम किस श्रेणी में क्लासिफाई करेंगे? तो उसका सही जवाब था स्टेज 4 में हम उसको क्लासिफाई करेंगे।
दूसरा सवाल था कि एक PLHIV जिसको हमने रिफैम्पिसिन बेस्ड ATT पे डाला हुआ है और उसको हम ART स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी ART पे हम उसको स्टार्ट करेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर है कि हम उसको TLD प्लस D पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी डोलोग्रेटिविर की थोड़ी कम हो जाती है जब हम रिफैम्पिसिन देते हैं, तो इसलिए हम एक एडिशनल डोज ऐड करेंगे। तो इसके अभी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो ये हमारे दो करेक्ट आंसर्स। ओवर टू यू पासा। So thank you so much, ma'am, and thank you to all the ART centers for sparing their precious time and joining, and thank you, Dr. Dharanpal. And with this, we close the session. Thank you so much. Good afternoon to everyone. Thank you so much. Good afternoon.